علیکم اندر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انم نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سید شہریار احمد اور ساتھ ہی سینئر تجزیہ کار چودھری خادم علی مانڈا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی شو. اور سر بتائیے گا, آج تو ہم بات کریں گے منی بجٹ پر اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے حکومت کی کارکردگی پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے پرویز خٹک کے ساتھ جو وزیر اعظم کی بات چیت ہوئی اس پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے عثمان مرزا کیس پر, اس پر بات کریں گے. جی سر بتائیے گا کہ جو منی بجٹ پیش ہوا ہے, مانڈا صاحب آپ بتائیے گا کہ جو منی بجٹ پیش ہوا ہے اس حوالے سے بتائیے گا کہ حکومت نے جو پیش کیا یہ بل, تو اس میں عوام کو کیا ریلیف ملے گا اور عوام کو کیا جو ہے نقصانات ہیں اس میں, بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انم. دیکھیں یہ جو منی فنانس بجٹ پاس کرایا ہے حکومت نے, جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا دیا تھا کہ یہ ہر صورت پاس ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی خوشی کے ساتھ یا کوئی بہتری کے لیے جو ہے یہ بل نہیں تھا. صحیح. یہ IMF کا حکم تھا, ان کی ڈکٹیشن کے اوپر, ان کے آرڈر کے اوپر یہ بل انہوں نے پاس کرنا تھا اور ٹیکسز لگانے تھے, مہنگائی بڑھانی تھی. وہ جو بڑھے گی اس کے اثرات جو ہے چند دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ عوام جو ہے نا مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, لیکن اس کے بغیر کوئی حل بھی ہمارا نہیں تھا. اس کی وجہ کہ اگر یہ بل پاس نہ ہوتا تو آپ کو IMF قرضہ نہ دیتا. جب IMF آپ کو قرضہ نہ دیتا تو پھر تمام مالیاتی جو ادارے ہیں انٹرنیشنلی, کوئی ورلڈ بینک ہے, کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, یا کئی دوسرے ممالک ہیں, یا کوئی NGOز ہیں, تمام ممالک جو ہیں وہ اپنی جو قرضے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں, اپنے جو پروگرام ہیں ان کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. تو ہمیں اچھا لگے برا لگے, مہنگا پڑے سستا پڑے, ہمیں یہ نگلنا تھا. اور یہ بات جہاں تک بلوں کی ہے, کچھ تاریخ پاکستان کی یہ بتاتی ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ ملٹری ادوار گزرے یا ہمارے جمہوریت کی حکومتیں, نون لیگ ہو, پیپل پارٹی ہو, کبھی بھی پوری تاریخ میں کوئی ایسا بل نہیں ہے, بجٹ نہیں ہے جو پاس نہ ہوا. صحیح. شہریار صاحب مجھے بتائیے گا سر کہ جو ہے منی بجٹ جو پیش کیا گیا اس سے کون سے طبقہ جو زیادہ متاثر ہوگا اور کن چیزوں پر, کن اشیاء پر جو ہے یہ ٹیکسز لگے ہیں؟ طبقہ تو درمیانے درجے کے جو لوگ ہیں نا, مڈل کلاس جو ہے پاکستان کی, ہر حال میں وہی افیکٹ ہو رہی ہے. ایک بہت امیر طبقہ ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, پیٹرول 150 روپے لیٹر ہو جائے, 170 روپے لیٹر ہو جائے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جا کے اسی طرح پیٹرول اپنی گاڑیوں میں بھرواتے ہیں اور اسی طرح انجوائے کرتے ہیں. آپ چلے جائیں, ریسٹورانٹس میں چلے جائیں, آپ کھانے پینے کی جو جگہ ہیں, جو بڑے بڑے برانڈ ہیں ریسٹورانٹس کے, وہاں دیکھیں ایسا رش لگا ہوا ہوگا, آپ کو جگہ نہیں ملے گی وہاں. اور شاپنگ مالز میں دیکھ لیں, بہت امیر شخص جو ہے, جو کہ ایلیٹ کلاس ہے ہماری, وہ اسی طرح وہ شاپنگ کر رہے ہیں, ان پہ بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. اور جو بہت ہی غریب ہے نا, بہت غریب طبقہ جو ہے, اس نے 2 روٹیاں کھانی ہیں, اس نے اپنے بچوں کو نہ پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا ہے, نہ اس کے گھر میں AC ہے, نہ اس کے گھر میں ٹیلی ویژن سیٹ ہے, اس طرح نہ بجلی پانی گیس کا اس کا خرچہ ہے, اس نے 2 4 10 روپے کی فیس دینی ہے اور وہ روکھی سوکھی روٹی کھانی ہے. وہ بھی اسی طرح ہے, اس کا بھی ہم اب دیکھ لیں, سروے کر کے دیکھ لیں, اس کو بھی اتنا فرق نہیں پڑتا. درمیانے جو کلاس ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے, جن کے بچے اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو بڑا مشکل سے گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے پیکج میں اور بڑا لمیٹڈ ریسورسز میں, وہ بہت بری طرح متاثر ہوئے. یہ IMF کے بارے میں جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ بہت ہی ضروری ہے تھا ان سے لینا, تاکہ وہ اور ہمیں قرضہ دیتے رہیں. پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ عمران خان نے کس طرح نعرے لگائے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے. وزیر اعظم نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ عوام سے جو وعدے, جو باتیں کی وہاں, وہ جو ڈرامے بازی جس کو میں بولوں گا کہ ویسی عوام کو لگتی ہے. اور اب وہ ہر روز کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے عوام کے دکھوں میں اضافہ کرنے کے لیے. اب جیسے یہ جو انہوں نے منی بجٹ کا بم کرایا, ابھی پھر اور چیز ہم نے سنی ہے کہ پیٹرول بھی 5 یا 6 روپے پھر بڑھ جائے گا 1-2 روز میں. تو سب سے زیادہ افیکٹ تو ہو رہی ہے مڈل کلاس, اور بہت بری تکلیف میں ہے. اب عوام میں تبدیلی بھی نہیں اس سینس میں نہیں آ سکتی کہ ہمارے ہاں جو ہمارے رہنما ہیں جو کہ شور مچاتے رہے کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, وہاں دیکھیں کیسے بجٹ پاس ہو گیا. اس سے پہلے بھی وہ شور مچاتے رہے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, پھر وہ بھی پارلیمنٹ میں منظور ہو گیا, اور اس سے پہلے بھی بجٹ ہو گیا منظور. یہ ہمارے ہاں جو لیڈران ہیں, بڑی ستم ظریفی اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ یہ مخلص نہیں ہیں. آپ دیکھیں کوئی وہاں پہ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے, اور وہ شاعری اس کی فیض احمد فیض کی سناتے ہیں, اس کی نظمیں ہم دیکھیں گے جب تخت
اٹھائے جائیں گے, جب تاج گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے. وہ ہم دیکھتے ہی رہ گئے ہیں, اس کوئی چینج نہیں آ رہی. میں تو اپنے بچپن سے یہ سنتا آ رہا تھا, اور ہمیشہ نئے حکمرانوں سے, نئی گورنمنٹ سے ہمیشہ یہ امید عوام لے کے آگے بیٹھ جاتی ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے مسیحا آ گیا ہو. عمران خان سے بھی ہم نے یہی سمجھا تھا کہ یہ مسیحا ہے. مالا صاحب بتائیے گا کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ امپورٹڈ چیزوں پہ جو ہے ٹیکسز لاگو کیے گئے, اور لیکن جو دیکھا جائے تو 140 سے زائد اشیاء پر 70% سیلز ٹیکس لگائے گئے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ صرف امپورٹڈ چیزوں پہ لگائے گئے ہیں یا بنیادی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جو ہر طبقہ اور ہر بندہ وہ جو استعمال کرتا ہے ان پر بھی ٹیکس لگائے گئے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک امپورٹڈ اشیاء کا تعلق ہے نا, ملک آپ کا اس نہج تک پہنچ چکا ہے معاشی لحاظ سے کہ ڈیمانڈ تو یہ کرتا ہے کہ جتنے بھی لگژری آئٹم ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کو بالکل بین کر دینا چاہیے, بالکل سوائے ان چیزوں کے جیسے کوئی میڈیسن ہے, کو اس کی ضرورت ہے, یا فیول ہے, تیل ہے, تو اس کے بغیر آپ کی گاڑیاں نہیں چلتی. کوئی اور ایک دو چیز آئٹم جو کہ آپ کو چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی امپورٹ بہت زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے. جب کم ہوتی ہے آپ کی ایکسپورٹ تو آپ کے اوپر پریشر پڑتا ہے. آپ نے پیمنٹ جو ہے نا ادائیگی ڈالروں میں کرنی ہوتی ہے. جب آپ نے ادائیگی ڈالروں میں کرنی ہے تو پھر ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں. آپ کا ملک روپیہ بناتا ہے, ڈالر نہیں بناتا. جب ڈالر نہیں بناتا تو یہاں تو دیکھنے میں یہ آیا کہ کتوں کے شیمپو یا کتوں کی خوراکیں, پینے والے پانی, اکثر بڑے بڑے گھروں میں جا کر دیکھ لیں کہ ان کی جو ٹوٹیاں واش روموں کی وہ بھی جو ہے باہر سے آتی ہیں, تو اس کا جو نقصان ہے وہ غریب عوام کو جو ہے بھرنا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں جو لگژری گاڑیاں ہیں, مجھے یہ بتائیں 5-6 کروڑ روپے کی, اور یہاں تو بڑی ٹھٹ کے ساتھ وہ لے کر پھرتے ہیں, کہتے ہیں جناب میں نے بڑی اپنی کمائی. او بھائی یہ پیسہ آپ نے تو روپیہ کمایا تھا, لیکن آپ نے ادائیگی جو ہے نا وہ ڈالر میں کی ہے. لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بنیادی اشیاء پہ نہیں لگا ٹیکس, تو پھر غریب عوام کیسے پسیں گے؟ یہ حکومت کا جو ہر حکومت, آپ اس سال آج کی تاریخ کا اخبار اٹھا لیں اور پچھلے سال کا اٹھا لیں اور پچھلی حکومتوں کے اٹھا لیں, یہی بیانات ہوتے ہیں, بندے بھی وہی ہوتے ہیں, سال چینج ہوتے ہیں, تاریخیں چینج ہوتی ہیں, آپ کی مشکلات وہاں کی وہاں. تو بھائی عام آدمی کے اوپر اس کا جو ہے نا وہ نقصان, مجھے یہ بتائے کہ وہ عام آدمی پاکستان میں ہے کون سا جس کی طرف ان کا اشارہ ہے؟ اور بھائی پیٹرول کے نرخ آپ بڑھاتے ہو تو کیا وہ گدھے اور جانوروں کو ڈالا جاتا ہے؟ اور بھائی وہ گاڑیوں میں ڈلتا ہے, بندے جو ہے نا اس کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر یہ ابھی بڑھے گا بجلی کے نرخ, تو مجھے بتائیں وہ عام آدمی وہ بجلی کا بلب نہیں جلاتا؟ بالکل ایسے کیا باتیں کرتے ہیں. بلکہ کہ یہ ان کو تو جھوٹ بولنا جو ہے نا بھائی, اسی لیے تو برکت اور رحمت نہیں اس ملک میں. جب خدا قرآن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت, تو صبح شام ایک ایک لفظ ان کا اٹھائیں, ان کی باتیں, ان کے یو ٹرن دیکھیں. ہر حکومت کے کوئی بھی آیا اس نے غریب عوام کی طرف کسی نے سوچا. یہ غریب عوام کے نام کے اوپر لوٹتے ضرور ہیں لیکن ان کو دیتے کچھ نہیں. حکومت کی کارکردگی پر بات کر لیتے ہیں. مارلا صاحب بتائیے گا کہ حکومت کی کارکردگی کیسی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. جبکہ منی بجٹ جو ہے, اگر ایک طرف دیکھا جائے منی بجٹ بھی منظور ہو گیا, اپوزیشن ناکام ہو گیا منی بجٹ کو ریجیکٹ کرانے میں, اور تمام ترامیم اور ان پر لگے ووٹنگ کا مطالبہ بھی ان کا مسترد ہوا ہے, اور اس کے ساتھ بھی جو حکومت کے حق میں جو ہے 163 ووٹ ڈلے ہیں اور مخالفت میں 146. تو آپ کو نہیں لگتا کہ نیکسٹ بینی کی حکومت ہوگی اگر اسی طرح ان کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے, یہ تو ان کی دیکھو اکثریت ہے. اگر بجٹ کوئی بھی پاس نہ ہو تو اخلاقی اور قانونی طور کے اوپر حکومت ناکام ہو جاتی ہے, اور اس کو پھر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا. نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ اگر حکومت نہیں, یہ تو ان کے اپنے ممبر ہیں نا, جو ابھی کوئی یہ تھوڑا کہ نیا الیکشن ہوا ہے, یہ تو ان کے اپنے ممبر ہے. 342 کے ایوان میں اگر کوئی میجارٹی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ہے نا, ان کو اتحادی ملا کر. جب ان کے اتحادی انٹیکٹ ہیں اور ان کے اپنے ممبر انٹیکٹ ہیں, تو جب تک نیا الیکشن نہیں ہوتا تو حکومت تو ہی نہیں کی ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک گورنمنٹ کی کارکردگی کا سوال ہے تو وہ جو ہمارا ایک ذہن ہے نا ہم لوگوں کا, کہ ہمیں گائیڈ ہی صحیح نہیں کیا جاتا عوام کو, کہ مہنگائی کنٹرول کرنا ایک ڈی سی کا کام ہے. جو پرماننٹ سیٹ ہے, تنہا مراد بنگلے سارا کچھ وہ حکومت سے لیتا ہے. مجھے بتائیں ایک ایم این اے یا ایک ایم پی اے, اس کے پاس کیا پاور ہوتا ہے؟ ساری پاور جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹو کے پاس ہوتی ہے.
डीसी के पास होती है, कानूनी और आईनी। सही। वो किसी को जजा दे, सजा दे, किसी का सील। मुझे बता कि एक एमएनए को हम पकड़ लेते, भाई महंगाई है, और भाई कंट्रोल कमेटी किसने बनानी थी। लेकिन बदबख्ती ये है इस मुल्क में कि जब कमेटी बनाते हैं, नरकनामे सेट करते हैं, तो उसमें भी सारे वो ताजर बैठते हैं, सही। वो आम आदमी की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखते। और ताजर जो कमेटी बनती है, तो वो कमेटी में भी वही लोग होते हैं, वो अपनी जो है ना वो इंटरेस्ट को जो है वो सामने रखेंगे। मेरा ख्याल है कि ये जितनी इंतज़ामिया है, जो हमारे डीपीओज़, हमारे डीसी, ये ग्राउंड के ऊपर चेक रखें हर चीज़ के ऊपर कि ये दरख्त जो है ज़्यादा किसके हैं, इसको सील क्यों नहीं किया, इसको बंद क्यों नहीं किया। ये अब हुकूमतों का क्या काम है, हुकूमत तो बेचारे खुद बरूने मिन्नत होते हैं। हमने कई दफ़ा देखा डीसी टीपीओ के बाहर बैठे थे दरखास्त लेके कि यार इसका पर्चा कर दो, इसका पर्चा खारिज कर दो, ये बंदा है यार इसका इंतकाल कर दो। ये तो खुद उनके आगे सवाली होते हैं। जब ये खुद सवाली होंगे तो मेरा ख्याल है कि पूछना तो उनको चाहिए कि जो परमानेंट सर्वेंट है इस गवर्नमेंट के, इस मुल्क पाकिस्तान के खजाने से उनको मराद मिलती है, तो उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हम वो बंदा कहाँ से आता है मुझे बताएं कि ये जो हुकूमत में बैठे हैं, अब बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जिनका वो अवाम से तल्लुक ही नहीं। जैसे ये शौकत तरीन है, जी जी, शौकत तरीन पहली हुकूमत में भी रहा, अभी भी है, वो मईद यूसुफ लिया हुआ है, वो शहबाज गिल है, बहुत सारे नॉन इलेक्टेड जिसके ऊपर कल वो निशानदेही मेरा परवेज खट्टक वालों ने भी यही की कि बहुत सारे लोग जो है ना वो नॉन इलेक्टेड है, जिनका तल्लुक ही नहीं। इन्होंने हुकूमत ख़त्म होनी है, अपने अपने बैग पकड़ने हैं, और किसी ने अमेरिका, किसी ने कहाँ चला जाना है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ कोई तवज्जो बंदा दे कि भाई हुकूमत जो है ना, हुकूमत का काम होता है हुक्मरानी करना, चेक करना। वो चेक यही होता है कि आपने बंदे से ये पॉइंट करने हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ करप्शन की इतनी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, इतनी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, और सज़ा नाम का नामो निशान ही नहीं। सही शहरियार, बताइए कि जो परवेज खटक ने बयान दिया है कि, और फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे ब्लैकमेल न करो, और ज़राए के मुताबिक उन्होंने बयान दिया है कि इजलास में परवेज खटक ने कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और हाफिज भी हम रहे हैं, अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। और इस पर वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार किया। और बाद में वज़ीर दिफा परवेज खटक का यह कहना था मीडिया से बात के दौरान कि वज़ीर आज़म मेरे लीडर हैं, मैं उनके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकता। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मुहर्रकात है पहले उनके खिलाफ बोलना? और ये देखिए ना, परवेज खटक इससे पहले भी ऐसी बात कर चुके हैं, इख्तिलाफी बयान दे चुके हैं, पिछले साल भी एक दो दफ़ा ऐसा वाक़या हो चुका था, और उसके बाद बात नहीं बनी, तो फिर खामोशी ही मसलियत होती है। देखिए, मैं आपको जुर्रत नहीं, ये ब्लैक मेलिंग है। जुर्रत इस तरह थोड़ा करते हैं। अपने इदारे में देखें ना किस बदनामियाँ लगी हुई हैं। परवेज खटक साहब पे कितने मालूम जब्बार दूसरे केसेस हैं इनके, और उनको भुगते ना पहले। और इमरान खान की वो मीटिंग में आके कहते हैं कि हमने आपको बनाया, ये मैं आपको वजाहत कर दूं, परवेज खटक साहब आपने नहीं बनाया इमरान खान को वज़ीर आज़म, की सारी दुनिया को पता है, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया उसको, और किस तरह इमरान खान को लोग दिए गए। इसी तरह अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो कुछ और लोग उनमें इंडक्ट कर दिए जाएंगे। पहले मैं आपको नाज़रीन को एक लतीफ़ा सुना दूँ कि एक मुलाजिम था, उसने अपने मालिक से कहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दे वरना। तो मालिक पहले घबरा गया, उसने कहा सर आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दे वरना। तो फिर मालिक कहता अच्छा वरना क्या? कहता सर फिर मैं इसी तनख्वाह पे गुजारा कर लूँगा। तो यही परवेज खटक ने किया। इमरान खान की मुझे ये बात रही लगती है कि उसने कहा मुझे ब्लैकमेल ना करो, बहुत अच्छी बात लगती है। आपने देखिएगा जब 18 बंदों ने KPK में जब MPAs ने इमरान खान से बगावत की थी, उसने सबको निकाल दिया था जो करप्शन में साबित हुए थे और के पैसे लेके उन्होंने वोट दिए थे सेनेट के इंतखाबात में। 18 के 18 लोगों को उसने फारिग कर दिया था। इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होता, ये तो उसमें बहुत बड़ी क्वालिटी है, और ये हमें उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। और परवेज खटक साहब, आप अपने हालात अपने पहले ये जो है ना मंजी के नीचे वो झाड़ू फेरें, उसके बाद आके ऐसी बात करें, और फिर बाद में कहने लगे जी मैं तो सिगरेट पीने गया था। ज़ाहिर है उनकी बात नहीं चली। दूसरी बात ये बजट के हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। जैसे मंडला साहब ने कहा कि ये चेहरे बदलते हैं, इनके बयान वही होता है कि आम आदमी इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा मंडला साहब ने। ये इनके सिर्फ चेहरे बदलते हैं और कोई भी इनमें एक पॉलिसी बयान होता है। देखिए पॉलिसी बयान ये होता है कि अगर कहीं कोई हादसा हो गया, खुदा न खास्ता ट्रेन का हादसा हो गया, जहाज़ क्रैश हो जाता है, या कहीं किसी हादसे में लोग इंतकाल कर जाते हैं, तो रात के अगर 3 भी बजे होंगे ना, तो साथ ही मीडिया पे खबर आ जाएगी कि वज़ीर आज़म ने इसकी बड़ा अफसोस का इजहार किया है और सोगवार ख़ानदानों से दिली दुख और अफसोस का इजहार किया है। अल्लाह जवार रहमत में जगह दे इन्हें।
फिर कहीं दहशतगर्दी का वाक़या हो जाए तो फ़ौरन मजम्मत आ जाएगी। ये होते हैं पॉलिसी बयानात। किसी भी जगह ये फ़ौरन वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर के ये लिखे हुए होते हैं ऑलरेडी। ये भी बिल्कुल ठीक है, मांडला साहब ने ये पढ़े पढ़ाए लिखे हुए पॉलिसी बयानात है कि आम आदमी इफेक्ट नहीं होगा। अब आप देखें पेट्रोल, अब इनकी मैं सोच को बदमाशी कहूँगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा इससे बेहतर लफ्ज़, मुनासिब और नरम लफ्ज़ मुझे नहीं मिला। अब मैं लाहौर का सफ़र कर रहा हूँ, यहाँ पे मोटरवे से 600 या 700 फ़र्ज़ करें एक टिकट है। अभी मैं गया हूँ टोल प्लाजा से, जब मैं निकला हूँ तो उन्होंने मुझसे 980 रुपये लिए। तो मैंने कहा ये क्या 200-250 रुपये का एकदम फ़र्क पड़ेगा। कहता जी पेट्रोल महंगा हो गया। मैंने कहा यार यहाँ तुम पेट्रोल से चला रहे हो टोल प्लाजा, तुम्हारा टोल प्लाजे के साथ पेट्रोल का क्या ताल्लुक है, मुझे समझ नहीं आई। तो ये सारे के सारे लोग बदमाश हैं। अब आप ये देखें, खेतों से मंडी तक एक ट्रक ने जाना है। बड़ी आसान आवाम को मैं समझाता हूँ कि पेट्रोल किस तरह, इसको किस तरह यूटिलाइज़ करती है ये जो हर माशरे का हर तबका इसको किस तरह यूज़ करता है पेट्रोलियम मसनूआत को। एक ट्रक का एक रेट है, कुछ भी हम कर लेते हैं पेट्रोल पर लीटर जो भी हो, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये। एक ट्रक खेत से सब्जी मंडी तक जाता है, फ्रूट मंडी तक जाता है, तो उसका 15,000 रुपये का पेट्रोल लगता है, वो 15,000 डीजल तय करता है। अब आप जब डीजल महंगा हो जाएगा तो उस ट्रक को कितना फ़र्क पड़ेगा, 15 की जगह 22,000 का डीजल लग जाएगा ना, या 25 का लग जाएगा, चलो हम डबल कर लेते हैं। अब उस पर माल लदा हुआ है 5 या 6 लाख रुपए का, उसका यहाँ से 8,000 या 5,000 या 7,000 का डीजल एक्स्ट्रा लगा है, लेकिन वो जब मंडी में माल उतारेगा जाके तो 5 लाख की बजाय 7 लाख रुपया लेगा। उसको 5,000 का फ़र्क पड़ा और 2 लाख रुपया उसने उनसे मुनाफा कमा लिया। अब जो मंडी में बैठा हुआ है आड़ती, वो तो उसको तो पहुंच गया ना माल, अब वो कहता है जी पेट्रोल महंगा हो गया, और उसका क्या काम है कि रिटेलर को जाके चीज़ महंगी दे, अपना मुनासिब मार्जिन रख लेना। तो वो भी यही कहेगा पेट्रोल महंगा हो गया। भाई तुम तो बैठे हुए हो, तुम्हारे पास तो खुद माल पहुंच गया, खेतों से ट्रक में आ गया। अब हमारा सिस्टम ऐसा है, जैसे कि मानव साहब ने कहा कि डीसी का काम है, मैं ये आगे इसमें जो इजाफा करूंगा कि एक बात बिल्कुल ठीक है कि 100% कानून भी ये कहता है कि डीसी जिम्मेदार है ये जो है कीमतों का तयन करने का। लेकिन एक ज़माना था जब ये डीसी के निज़ाम अच्छे चलते थे मांडला साहब, जब चंद एक लोग होते थे करप्ट किसी इदारे में, किसी जगह पे दुकानदार होते थे, 2-3-4 दुकानों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली तो आप उस पर छापा मार देते थे। अभी तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, सारे के सारी मार्केटें अभी रोने के अलावा कुछ भी नहीं है। सर बताइएगा, उस्मान मिर्जा का जो केस है उसमें ईमान और असद ने उसे पहचानने से क्यों इनकार कर दिया, क्या मुहर्रिकात हैं, जबकि उन्होंने पहले तो उन्हें पहचाना था उस्मान मिर्जा को। आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे जो है मामला चल रहे हैं, क्या दबाव है, कोई डर है, खौफ है, क्या लगता है आपको? देखिए अनब, जो हिस्ट्री या तारीख है मुल्क पाकिस्तान की, उसको अगर एक एक करके हम गिनती करें तो यहाँ इंस्पेक्टर ने अयान अली को पकड़ा, पकड़ने के बाद क्या हुआ, उसका मर्डर हुआ। सही। ये आपने देखा बलूचिस्तान में मजीद अचकजई, उसने गाड़ी के नीचे रौंद कर कांस्टेबल को मारा, सबके सामने, बाइज्जत बरी हुआ। मुझे ये बताएं, साने मॉडल टाउन 14 बंदूक का कत्ल और 100 बंदा जख्मी, कोई सजा हुई किसी को? नहीं। इनामात से नवाजा गया, अवार्डों से नवाजा गया, दन दनाते सब फिर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, कैमरों में फुटेजेस महफूज है कि फायर कौन मार रहा है। सानिया साहिवाल दिन दिहाड़े गोलियों से जल्दी करती है। लेकिन माले साहब उसमें भी तो कहीं ना कहीं हम ही गलत है ना, नहीं गलत को मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं वही उसी तरफ इस तरह तो मामला होते रहेंगे, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। जी जी। मुझे ये बताएं कि ये जितना कुछ है, ये आपका निजाम इतना थक चुका है, वसीदा निजाम, निजाम अदल पूरी दुनिया के अंदर, हमारे जो चर्चे हैं कि पूरी दुनिया में 130 ममालिक में हम 126वें नंबर के ऊपर हैं करप्शन में, अदल फराम करने में, और करप्शन में पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे। सही। जब ये आलम होगा, जब आपका अदल इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं, कातलों की डिक्टेशन के ऊपर अमल करेगा, उनकी दहलीजों के ऊपर सलाम करेगा। पूरी दुनिया ने देखा कि जब शहबाज शरीफ ने जस्टिस कयूम को फोन किया तो फोन के ऊपर डिक्टेशन दी कि बड़े मियाँ साहब के सजा दो, मिलो के जी, मियाँ साहब का आर्डर है। जब आप अहकामात
सामने रख के देखें, जब जलील करेगा आपका निज़ाम कि भाई इसमें 10 घंटे की बात थी, सही बंदे पकड़े, बयानात हो गए, उनकी फरांसिक होगी, जब फैसला ही आपने नहीं करना, उनको जलीलो खार करना आपने, तरीक फिर महीने की तरीक, फिर महीने की तरीक, ये मुआशरा आपको जीने देता है। और उसके 2 ही ऑप्शन होते हैं बंदे के पास, या तो बंदे को वो ये लोग बाहर देते हो, अभी वली बाबर साफी कराची का केस, कोई गवाह उसका जिंदा बचा, कोई वकील उसके कितने तब्दील हुए, आखिरी वकील नेमतुल्लाह उस रंधावे का भी इन्होंने कत्ल किया, सही को बचने दिया। कि जब आप लोग मुझे बताएं कौन कौन सी, ये उज़ैर बलोच गर्दनों के साथ फुटबॉल, कौन कौन सी, पता नहीं 68 गेट से 18 में वो बाइज्जत बरी हो चुका है, सही क्या क्या सबूत नहीं है। ये डॉक्टर आसम वो चौरी निसार इधर इंटीरियर का वजीर था, तो उसने कहा जी हमारे पास पता नहीं कितनी इसकी वीडियोज है, बनाई, सामने शॉट भी आए, तो क्या आज वो फिर तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं सारे, फिर उनको प्रोटोकॉल है, फिर उनको बरात है। मुझे ये बताए ना कि वहां तो कोई गवाह तब्दील होता है ना, सही कि वहां को नजर आया ये नवाज शरीफ मफरूर आजम बाहर है, जब मुशर्रफ ने भेजा तो भाई सजा हुई, किन अदालतों ने फिर वापस की, इन्होंने कौन से गवाह फिरे थे, को आगे बताया ना, को मतई फिर गया था, क्या हो गया था। और मुझे तो उससे ना हंसी आई, वो आयशा आहद, वो हमजा शहबाज के खिलाफ केस कर करके अदालतों में, वो एक दिन वो साकिब निसार ने कहा नहीं 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 आ जाओ, तू बड़ा किता कि भाई तू छोड़ ना कर, असं इन्हों के खिलाफ थोड़ा फैसला कर सकते हैं, आराम नाल अंदर समझौता अखबार है। जब आपका इंसाफ इन लोगों को इंसाफ नहीं देगा, गरीबों को, यह अदालत की जिम्मेदारी है। जब मराहत लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, तो मुझे बताएं कि एक स्टेटमेंट बदली करने से, गवाह के मरने से या बदल जाने से क्या वो जुर्म खत्म हो जाता है? जुर्म अपनी जगह के ऊपर कायम रहता है। ये जुडिशरी का फर्ज बनता है कि उनका काम है सच और झूठ का फैसला करना, जो मुल्ज़मान है उनको तलाश करना और उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना, यह अदारों की जिम्मेदारी है। लेकिन बदबख्ती से हम फेल है इसमें। हमारा निज़ाम, पूरा निज़ाम इन्हीं चोरों, डाकू, लुटेरों और कातलों की दहलीजों के ऊपर सलाम करता है, सलामी भरता है। आपने देखा वो जज जो मर गया अरशद मलिक, वो जिसका केस था नवाज शरीफ का, उसके बाद हैवट जा रहा है, उसके बाद मदीने जा रहा है। वो मुझे बताओ कि ये कोई शक वाली बात है कि जब आपका पूरा निज़ाम उनकी दहलीजों पे सलामी देगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक गरीब आदमी को उसकी क्या जरूरत है कि वो, उसको 2 ही ऑप्शन है कि या वो मर्दे के लिए तैयार हो जाए, अगर नहीं मर्दे के लिए तैयार हो तो पीछे हट तो पीछे हट जाए, फिर सौदा करे, पैसे ले और जाए। सही शरियार, मैं आपसे पूछूंगी उस्मान मिर्जा केस जो है उसका क्या अंजाम होगा, अब जो सूरत हाल है आपको क्या लगता है? ये इसका वही अंजाम होने जा रहा है बादियों नज़र में जो कि इससे पहले बहुत सारे केसेस का हुआ। अब देखें रेमंड डेविस में फ़हीम वगैरह को उसने गोलियां मार दी थी रेमंड डेविस ने, तो उसकी बेवा ने खुदकुशी कर ली बाद में, उसने कहा मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। ये हमारी सूरत हाल है। मांडला साहब ने बिल्कुल ठीक और कहा। पूरा निज़ाम, एक मिनट, पूरा निज़ाम रेमंड डेविस को छुड़ाने के लिए पेश था, कोई अदारा ऐसा नहीं था बिल्कुल कि कोई गैरत का मुजाहरा करता कि हमारे मुल्क में आके दिन दिहाड़े किसी ने छूट की सारे नंबर बना रहे थे, क्योंकि सबको तो कार्ड चाहिए होते हैं, कोई किसी का ग्रीन कार्ड, किसी को नौकरी, किसी का कुछ। मांडला साहब आपको ये भी याद होगा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों इंग्लैंड चले गए थे, वो इलाज कराने चले गए, शहबाज शरीफ भी निकल गया, पीछे रेमंड डेविस का यहीं पे यही मसला पड़ा रहा, इस्तिस्ना है कि नहीं है। सिफातकार को हमारे एंकर ये प्रोग्राम करते रहे, आसमान सर पर उठा लिया और वो चुपके से शहबाज शरीफ साहब भी चले गए अपने भाई की इयादत करने और यहाँ से उसको बड़े ईजीली उसको निकाल दिया गया। आपको क्या वो उसामा बिन लादेन वाले केस का डॉक्टर अफरीदी का भी पता है किस तरह वो दे गए जो, और अभी एक और सेशन कोर्ट ने 3 मुजरिमों को बरी कर दिया। जी मैं आज ही पढ़ रहा था, वो एक चीनी खातून थी, उसको इस्लामाबाद में उसको रेप किया और 5 साल बाद फैसला किया। हमारे ट्रायल कोर्ट में इतनी सुस्ती के साथ काम चलता है। मुझे उसका एक ऑस्कर वाइल्ड था, एक फिलोसोफर लॉ का, उसने बात की थी, मुझे समझ नहीं आती कि लोग गैर कानूनी काम क्यों करते हैं जबकि कानून में ही इतनी गुंजाइश मौजूद है कि आप गैर कानूनी काम करके बच सकते हैं। उसने कहा था गैर कानूनी काम किसी को नहीं करना चाहिए, कानून में से ही आप ऐसी चीज़ें निकाल लेंगे। अब देखें कानून इतनी गुंजाइश देता है, मुजरिम को इतनी गुंजाइश देता है कि वो थ्रेट कर ले, किसी को लालच में ले आए। अभी सबको पता है ये ईमान और असद वाला वाक़या जो मैग्नम प्लाजा F11 में हुआ था, और लोगों के, आप यकीन माने, हम और मांडला साहब जज्बाती लोग हैं, हमें, मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। हमने उस लड़की को अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह डील किया, मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया।
नवाज शरीफ ने ये सॉरी वजीर आजम इमरान खान ने नोटिस ले लिया, अपोजिशन ने नोटिस ले लिया, लेकिन सब एक उसका पेज कोई पर आ इंतजाम गए नहीं इसका। और अब इस खातून ने ये हरकत की है। मैं इसको सिर्फ ये कहूंगा तो बड़ा दुख हुआ हमें तुम पर, तुम्हारे पास बचा ही कुछ नहीं था, तुम्हें सारी सोसाइटी सारी दुनिया के सामने उस शख्स ने नंगा कर दिया था, बिल्कुल, अब तुम्हारे पास और क्या बचा था? तुम उसको सजा दिलवा देती तुम, लेकिन बाकी कानून कितने लोग अपना बच जाते हैं, सर? कानून अपना फिर भी कह रहे हैं, रियासत कह रही है कि जाहिर है रियासत के खिलाफ जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो रियासत उसकी जो होती है फरीक बनती है। इमरान खान ने कहा हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे, लेकिन ईमान और असद से हमें बड़ा दुख है जो वो ये कह रही है कि हमने इसको पहचाना नहीं। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तो बहुत बुरी बात अगर की सर है। वो हिम्मत रखते, अभी तक हिम्मत रखी थी, आगे भी हिम्मत रखते तो फिर कैफरे किरदार तक मुजरिमों को जी, पहुंचाते definitely, और फिर आगे कोई इस तरह का काम करने से, इकदाम करने से अपने आप को बाज भी रखता और डरता भी कि मेरा भी अंजाम अब यही होगा। आपने उसको दावत आम दे दी है कि वो फिर आएगा, विक्ट्री का निशान बनाएगा, वो उस्मान मिर्जा और उसके साथी वीडियोस अपलोड करेंगे और कहेंगे देखा हम तो बेगुनाह थे, हम बच गए, जबकि सारी दुनिया ने देखा कि वो उनके साथ गले पे हाथ डाल के उन दोनों को तंज कर रहा है, उन्हें जलील कर रहा है और ये कहते हैं हमने इसको पहचाना नहीं। मैं अगर होता इसकी जगह जज, अगर मैं होता बाखुदा, मैं लॉयर हूं, मैं जज होता तो मैं इन दोनों को जेल भेज देता कि तुमने पूरी कौम को नफसियाती बना दिया और अब तुम कहती हो कि हम इसको पहचानते नहीं। 6-6 महीने जेल में रह के आओ तुम दोनों, तुम लोगों झूठी गवाही पे भी जो है पहले फिर कहती है हमें ना कानून इस पे भी हम ना हमें लेकर गई है, ये जेल में लेके गई, पुलिस ने खुद बना लिया सारा केस। पुलिस ने जितनी मेहनत की इस केस पे, जितना तवज्जो से पुलिस ने बंदे गिरफ्तार किए 3 दिन में, मैं अब शाबाश पेश करता हूँ पुलिस को, पुलिस से बड़े गिले शिकवे हैं, लेकिन ऐसे केसेस में पुलिस 24 घंटे 48 घंटों में बंदों को गिरफ्तार करती है और बहुत अच्छा उन्होंने कई दफात लगाई हैं, 12-13 दफात उस पर लगी हैं, उसको सजा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये ईमान और असद से कौम को बड़ा गिला शिकवा रहेगा। इसके साथ ही अपनी मेजबान अनम नकवी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।